So friends, the speakers are coming, they are all here. So to begin with, I think the context of today's meeting is something that doesn't require much elaboration. The purpose of our meeting today is to specifically pose a question before the government of the center and specifically the Ministry of Education. And that question is the following: that here we have a reality where students of this university and their collective rights were assaulted by the Vice Chancellor of this university. When she rusticated, she took the decision to rusticate all the 4 office bearers of the Students' Union and 1 former office bearer. We saw this as an attack not just on individual students, not a disciplinary measure against individual students, but an attack on the collective rights of the students, an attack on the JNU-SU itself. हमने विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुडी पंडित, उनका जो फैसला था कि JNU-SU के चारों पदाधिकारियों को निष्कासित करने का, उसको हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और छात्रों के सामूहिक अधिकारों पर एक हमले के नज़र में देखा। उसके बाद हमारे माननीय वाइस चांसलर ने एक पॉडकास्ट में UGC इक्विटी रेगुलेशंस के बैकग्राउंड में और उनके संबंध में बहुत सारी टिप्पणियां की, जो पूरे दुनिया ने उसको सुन लिया है, पूरे देश ने उसको सुन लिया है कि किस तरह की मानसिकता उन्होंने अपने इन विचारों में व्यक्त किया। If one looks at the background to this, the statements made by the Vice Chancellor, she of course claims that she has been quoted out of context. Let me first identify some of the elements of the context in the university. If you go as far back as October 2023, the Jawaharlal Nehru University Teachers Association in on 5th September 2023, which was Teachers' Day, issued a State of the University report. And if you go back and look at that report, you will find reference there to her actions with regard to appointments on reserved positions, where we pointed out that a large number of reserved posts, no selections were being made by citing none found suitable criteria. And we had pointed out that this reflects a certain mindset of the JNU administration. अक्टूबर 2024 में, अगस्त 2024 में इसी रिपोर्ट का दूसरा एडिशन आया। तब तक जो है NFS की संख्या और रिजर्व पोस्ट जिसमें अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी। उसी रिपोर्ट में हमने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि वाइस चांसलर ने मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है कि रिजर्व पोस्ट पर, एसोसिएट और प्रोफेसर के पोस्ट पर काबिले तारीफ लोग नहीं मिलते, इसलिए इनको डाउनग्रेड किया जाए और इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट बना दिए जाए। और हमने उस रिपोर्ट में विशेष रूप से ये कहा था कि दिस रिफ्लेक्ट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेजुडिस एंड इज अनबिकमिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लाइक JNU। इसी 2025 में जुलाई में जब JNU-TA का डेलीगेशन वाइस चांसलर से मिला था और अपना एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसमें हमने विश्वविद्यालय प्रशासन का और कुलपति का, वाइस चांसलर का पिक एंड चूज पॉलिसी का जिक्र किया था, जो कि प्रमोशंस में, अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस रिजेक्शंस में
किसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कई इंस्टेंसेस साइट करने के बाद हमने ये कहा था, इफ देयर इज वन पैटर्न दैट कैन बी फाउंड इन दिस पॉलिसी ऑफ पिक एंड चूज, it is the violation of principles of gender and social justice in JNU. This is something that we said specifically, where the social, religious, gender background of the person, the political, ideological background, all of that matters in deciding how the administration under our Vice Chancellor treats you. In October, we issued also a further updated version of the State of the University report, where we highlighted all these particular instances and cases. So as far as we are concerned, हमारे पास तो बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट है समझने का कि वाइस चांसलर ने जो अपने पॉडकास्ट में रिमार्क्स दिए थे उसके पीछे क्या मानसिकता है। हम उसका झलक लगातार देखते आए हैं कि वो किस तरीके से उनके कार्यप्रणाली में इसका झलक मिलता है। वो केवल वो महिला वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी की सबसे पहले, और वो ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं, जिसका उन्होंने इस पॉडकास्ट में भी जिक्र किया, केवल उस तक विक्टिमहुड के सवाल को सीमित रखती है। बाकी कोई असली वो अपने करियर के लिए तो इस्तेमाल करती है, लेकिन बाकी जो असली विक्टिम्स है उनको वो कहती कि आपका ये फॉल्स विक्टिमहुड है। तो हमने तो ये झलक पहले ही देखा है। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की अगर बात करें, सो देयर इज अ स्टेटमेंट दैट द वाइस चांसलर मेक्स इन द पॉडकास्ट, एंड दैट स्टेटमेंट इज that this was all done secretly. The UGC equity regulations were adopted secretly. No one knew what was there in those regulations. Now I want to draw your attention to something which is not very well known. Why it is not very well known should also be clear. If you go to the UGC website, there is a section on notices. And if you go to that notices section and go back in time, 27th of February 2025, the UGC regulations were notified on 13th January 26. In 27th February 2025, almost 11 months before that, there is a public notice sharing the draft UGC equity regulations. अब हमको वो देखने में नहीं मिला, वो तो समझा जा सकता है, हम रोज तो UGC का वेबसाइट देखते नहीं हैं, लेकिन पब्लिक नोटिस जब इशू होता है हर विश्वविद्यालय को भेजा जाता है। उसी से पहले जब ड्राफ्ट रेगुलेशंस और टीचर सर्विसेज कंडीशंस आए थे, आप JNU के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे देख लीजिए, सर्कुलेट किया गया यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कि इस पे अपने कमेंट्स दीजिए। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को तो वो मिला था, अगर वाइस चांसलर ने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि ये सीक्रेटली क्या किया गया। तो वो किस तरीके से झूठ बोल सकती है, उसका ये मिसाल था, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे है, वो वेबसाइट पे आज नहीं आया, वो 27 फरवरी 2025 से है। सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और उन्होंने जो पॉडकास्ट में कहा, आप उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट बना लें, इमेजिन मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी का मतलब मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी होता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक्स के केस में, दलित्स के केस में ये परमानेंट विक्टिमहुड, दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। उन्होंने कहा कि वेदर यू आर बॉर्न इन दिस सोशल ग्रुप, दैट सोशल ग्रुप, इट डजंट मैटर, यू आर बोथ बॉर्न, यू हैव नो चॉइस इन दैट मैटर। तो जो वाइस चांसलर ने अपने पॉडकास्ट में कहा वो स्पष्ट है, साफ है, और वो उनकी क्या मानसिकता है। हमें अगर कोई आश्चर्य है
तो केवल इस बात का उनकी ये मानसिकता है, हम ये पहले से ही जानते थे और हम पहले कई बार इस सवाल को उठा चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ आश्चर्य की बात ये हो सकती है कि इतने साफ साफ रूप में उन्होंने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी समझ क्या है। और अगर आप उस पॉडकास्ट को देखेंगे, जिस लाइन से ये शुरू होती है कहानी मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी की, उससे पहला ही लाइन ये है कि मैं यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हूँ और मैं ओबीसी कम्युनिटी से आई हूँ और जिस सरकार ने मुझे नियुक्त किया है, सब उसी ने तो नियुक्त किया है, बाकी सब उनसे अधिक मनुवादी हैं। उसी लाइन से पहले उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो उनकी मानसिकता जो है क्या है, वो इससे स्पष्ट झलक होती है। और इस कार्यक्रम के, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सरकार से सवाल उठाना चाहते हैं कि जो अन्याय विश्वविद्यालय में हो रहा था, उनकी ये कमेंट्स पे जो छात्र विरोध कर रहे थे, अपने अधिकारों पर जो हमला हो रहा था उसके खिलाफ जब विरोध कर रहे थे, तो आप ही सरकार के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसको पहली बात उनको विश्वविद्यालय से बाहर निकलने नहीं देती, कहती है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन क्यों अनुमति नहीं है? अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शहर में इस्तेमाल करने का आपको क्यों अधिकार नहीं दिया जाएगा? दिल्ली पुलिस को क्या हक है क्यों इस लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करे और ये कहे कि हमने अनुमति नहीं दी? उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हमारे छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के गेट पर हुआ, उसमें भी कोई कानूनी बाधा कि आप किस तरह से क्राउड को कंट्रोल करेंगे, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे, उसकी कोई सीमा जो है दिल्ली पुलिस ने स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद जाके छात्रों के ऊपर मुकदमा, उनको गिरफ्तारी और मुकदमा, जिसके कारण कई छात्र जो है तिहाड़ जेल गए। अभी भी एक साथी है जिनकी रिहाई नहीं हुई है और 3 दिन के न्यायिक जद्दोजहद के बाद भी 13 साथी वहाँ से निकल पाए हैं, नहीं तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया था। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि छात्र जब न्याय के लिए मांग करते हैं तब उनके साथ ये व्यवहार, और आप ही की सरकार की नियुक्त जो वाइस चांसलर है, वो जब सामाजिक न्याय के सवाल पर इस तरह की बदतर मानसिकता व्यक्त करती है, आप चुप हैं? उस पे आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? उससे आप क्यों सवाल नहीं कर रहे? उसको क्यों इस पद से नहीं हटा रहे? एक ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वो आज बनी हुई है जिसका इतिहास क्या है सब जानते हैं। उस इतिहास के बिल्कुल विपरीत मानसिकता वाली जो वाइस चांसलर है, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उसके कुछ दिनों बाद वो हट गए, लेकिन जो पूर्व उपराष्ट्रपति से उनके साथ एक कार्यक्रम जेएनयू में आयोजित किया गया जिसमें हमारी वाइस चांसलर उपस्थित थी और वो यहाँ थी, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बुलाया गया था वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस, उसमें वो नहीं गई। उस पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शो कॉज नोटिस भेजा वाइस चांसलर को कि आप क्यों नहीं आए वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में, कारण बताओ। नोटिस भेजा गया, लेकिन आज वो इस तरह की बातें करती हैं और सरकार मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड जो रेगुलेशन आए हैं उसके बारे में इस तरह से टिप्पणी करती हैं और आपसे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वाइस चांसलर ने जो कहा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केंद्र सरकार मानती है कि उन्होंने जो कहा सही कहा? वो उससे सहमत है? अगर है तो स्पष्ट करें ताकि लोग भी जाने कि सरकार की सोच क्या है।
और अगर नहीं मानते, स्वीकार करते, नहीं उससे सहमत है, तो इसको साबित करे कि वो सहमत नहीं है, उनको इस पद से हटाकर। ये सवाल, ये चुनौती देने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम JNUT की तरफ से आयोजित किया है। और हमने कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं, शक्तियां हैं इस देश में, उनके नेतृत्व को आमंत्रित किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो लोग हमारे बीच में आए हैं और अपने विचार रखेंगे। दिनेश वार्ष्णेय, हमारे पुराने बहुत साथी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के नेता, कॉमरेड वृंदा करात, CPIM की बहुत पुरानी सीनियर लीडर, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, जनरल सेक्रेटरी CPIM के ML के, श्री मुकुल वासनिक AICC जनरल सेक्रेटरी, और कुछ और वक्ता भी और हमारे साथ जुड़ेंगे। वो तो मीनाक्षी है हमारी सेक्रेटरी, उनको मैं पहले ही बुला चुका हूँ। ठीक है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये लोग सब हमारे बीच में आए हैं और आज के इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए आए हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे इस संघर्ष और लड़ाई के समर्थन में अगर आए हैं तो इस लड़ाई के समर्थन में आए हैं। और इस कार्यक्रम के बाद हमारे जो सवाल हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको जनता के बीच और सरकार के सामने रखने में हमारी मदद करेंगे।